students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is circulatory and excretory system. You will be aware about circulatory system and excretory system. We have already learned in the previous chapter that the food we eat is digested by our body through digestive system. The function of digestive system is to reduce the food into simpler form, that is glucose. As digestion is completed in small intestine, then how each and every cell of our body receive this glucose from small intestine? Well, this job is done by another system, that is circulatory system. अब आपका खाने का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसे काम करता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, वो हम जान चुके हैं. बट ये डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स ब्लड वेसल्स से सारे पार्ट्स तक जाते कैसे हैं? इसका आंसर है सर्क्यूलेटरी सिस्टम, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. मोर टू नो, the adult human body is made up of 100 billion cells, 206 bones, 600 muscles and 22 internal organs. तो adult human body जो होती है 100 बिलियन सेल से बनी होती है, 206 बोन्स होती हैं, 600 मसल्स और 22 इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं. Now let us study circulatory system of our body in detail. Circulatory system. Circulatory system helps in the transportation of nutrients, blood, digested food and water inside our body. सर्कुलेटरी सिस्टम से होता क्या है, जितना भी न्यूट्रिएंट होता है वो आपके ब्लड, डाइजेस्टिव फूड और जितना भी वाटर होता है वो सारा का सारा सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका सर्कुलेट होता रहता है. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हैज फॉलोइंग पार्ट्स. नंबर वन इज blood vessels. Blood vessels are thin tube-like structures that run throughout our body. Blood vessels are of three types: arteries, veins and capillaries. तो blood vessels जो होते हैं thin tube-like structures होती हैं, जो आपको blue और रेड दिखाई दे रही हैं. इसमें भी आपके तीन टाइप्स होते हैं: arteries, veins and capillaries. Arteries lie deep inside the flesh, while veins can be seen as the greenish blue lines in our hands and legs. And capillaries connect arteries and veins to each other. Arteries जो होते हैं फ्लैश में काफ़ी नीचे की तरफ होते हैं, आपको बाहर से विजिबल नहीं होंगे. ऑन द अदर हैंड वेन्स जो होते हैं, आप कभी अपने हाथ के बाहर की तरफ या इधर की तरफ भी देखेंगे तो आपको ब्लूइश ग्रीन कलर में आपको ये वेन्स आपको दिखाई दे जाएंगी. कैपिलरीज जो होती हैं वो आपकी आर्टरीज और वेन्स दोनों को एक साथ कनेक्ट रखती हैं. ये आपका ये आपके अलग अलग जो आपकी वेन्स और आर्टरीज हैं, इनको जोड़ के रखा हुआ है कैपिलरीज ने. ब्लड. Blood is a red colored fluid that flows inside the blood vessels. About 10% of our body weight is made up from blood. Blood is a medium through which water, nutrients, digested food are transported inside our body. Oxygen and carbon dioxide are also transported by blood inside our body. अब ब्लड जो होता है रेड कलर का फ्लूइड होता है, हमारी ब्लड वेसल से पूरा का पूरा ये मूव करता रहता है. और 10% जो बॉडी वेट होता है वो आपके ब्लड का ही होता है. ब्लड इज द मीडियम जिसकी वजह से जो भी आपका वाटर होता है या अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं. एंड नेक्स्ट इज हार्ट. Heart is a muscular organ which lies on the left side of our chest. It is like a pump. The left side of our heart receives blood from our lungs and pumps it to all the parts of the body through the blood vessels. The right side of our heart receives blood from the rest of the body and pumps it back to the lungs. The blood flowing from our lungs to the heart is full of oxygen. Our heart pumps this oxygen-rich blood along with nutrients and water to the cells in different parts of the body. अब हार्ट जो होता है मस्कुलर ऑर्गन होता है, आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड पे चेस्ट में ये लाई करता है. इसमें भी आपके जितना भी ब्लड होता है जो हार्ट रिसीव करता है वो लंग्स से करता है और पंप करके उसको बाकी पार्ट तक पहुंचाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू. और हार्ट का भी जो राइट साइड होता है ये ब्लड रिसीव करता है आपकी पूरी की पूरी बॉडी से और वापस उसको लंग्स में पंप कर देता है. ये सारा का सारा आपका जो हार्ट होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वाटर भी होता है, उसको सेल्स और बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है. ट्राई आउट. Touch your wrist gently and find your pulse. Look at the watch and count the number of times your pulse beats in a minute. Record your observations and compare with your classmates. अपने रिस्ट में आप जेंटली अगर 2 से 3 फिंगर्स लगाएंगे तो आपको पल्सिंग फील होगी. ये जो पल्सेटिंग वेन्स हैं आपको 1 मिनट का टाइमर लगाना है और काउंट करना है कि 1 मिनट में आपकी वेन्स कितनी बार पल्सेट कर रही हैं और अपने क्लासमेट्स के साथ इसे कंपेयर करना है. Evaluate yourself. Fill in the blanks. अगेन सम क्वेश्चंस. अभी तक हम इन्हीं के बारे में पढ़ चुके हैं, इसका आंसर्स आपको
खुद से देनी है। नाउ आफ्टर द सर्कुलेटरी सिस्टम कम्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम. Excretory system helps to remove the waste produced inside our body. Human excretory system consists of a pair of kidneys, a urinary bladder, a pair of tubes called ureter and a urethra. Harmful waste like urea and uric acid produced inside our body are expelled out of the body as urine by excretory system. अब एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन प्राइमरी फंक्शन होता है बॉडी का वेस्ट बॉडी से बाहर एक्सपेल करना. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अ पेयर ऑफ किडनीज यानी कि 2 किडनीज होती हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, 2 यूरेटर्स होते हैं और एक यूरेथ्रा होता है. जितना भी हार्मफुल वेस्ट प्रोड्यूस करती है बॉडी, चाहे यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, वो यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीटरी सिस्टम की मदद से बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाता है. The formation of urine takes place in kidneys. The kidneys have a number of filters called nephrons. Nephrons filter harmful substances from the blood. These harmful substances, along with the water from urine is carried through ureters from kidneys to the urinary bladder. Urine is stored in urinary bladder. From urinary bladder, urine is passed out to the body through urethra. अब आपका जो यूरिनेशन का पूरा यूरिन जहाँ पे आपका फॉर्म होता है वो किडनीज में होता है. किडनीज में आपके बहुत छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं. ये सारे के सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को ब्लड से फिल्टर आउट कर देता है जिससे आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है. ये यूरिन जो होता है ये यूरेटस से निकलता है आपके किडनीज में से बाहर और जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, वहाँ पे स्टोर्ड रहता है. और जैसे ही यूरिनेशन का सेंसेशन होता है वैसे ही ये बॉडी से बाहर यूरेथ्रा के थ्रू एक्सपेल हो जाता है. यूरिनेट करना या फिर ये किडनी अगर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती है तो बॉडी के अंदर ही टॉक्सिन्स बनना शुरू कर जाते हैं और इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है. मोर टू नो, लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी एंड परफॉर्म्स मोर देन 500 फंक्शंस. तो लिवर जो है सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी में और ये इसमें अराउंड 500 फंक्शंस परफॉर्म होते हैं. लिवर खराब होना अगर शुरू कर जाता है तो उसके साथ साथ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने के भी चांसेस होते हैं. लिवर हेल्दी, बाकी सारी चीजें भी हेल्दी रहेंगी. टर्म्स टू लर्न. Circulatory system, an organ system that helps to transport digested food and water inside our body. Excretory system is an organ system that helps to remove the harmful substances out of our body. Circulatory system से आपकी बॉडी के अंदर ही ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है और एक्सक्रीटरी सिस्टम से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपकी बॉडी से एक्सपेल कर जाता है. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको खुद से करनी है.